We have already looked at relative acceleration. So let's take a recap. Relative acceleration. तो इसमें लेट्स से कि ये एक दो पार्टिकल्स है, मान लो दिस इज x इज इक्वल टू 0, दो पार्टिकल्स जो है, दिस इज वन पार्टिकल, दिस इज अनदर पार्टिकल। लेट्स से ये जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल है वो जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ये जो पार्टिकल है वो जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। This particle is at x is equal to 1 meter, and this particle is at x is equal to 4 meters. Let's say कि this particle has an acceleration in this direction of 1 meter per second squared, and this particle acceleration इसका let's say 4 ले लेते हैं, and इसका acceleration ले लेते हैं 1 meter per second squared. Okay, so इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि आदि what would be the relative velocities, position and acceleration. Okay, so relative, let's say this, I'll call this one A and I'll call this one B. तो with respect to B देखते हैं, okay, और let's say चलो with respect to A देखते हैं, with respect to A. तो position of B with respect to A क्या रहेगा? Position of B minus position of A. Okay, तो कितना आया ये position of B with respect to A? This is going to be 4 minus 1, which is equal to 3 meters. All right. Next, velocity of B with respect to A. इसका मतलब क्या हो गया? Velocity of B minus velocity of A. What is the velocity of B? It is 3 meter per second minus velocity of A is 2 meter per second. मतलब कितना आया? 1 meter per second. And similarly acceleration of B with respect to A क्या होगा? Acceleration of B minus acceleration of A. तो ये कितना आएगा? देखो acceleration of B कितना है? 1, और acceleration of B कितना है? 4 है। तो इसका वाली क्या है? -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ओके, नाउ इसमें अब देखो इसको इसका इसका मीनिंग क्या है, इन चीजों का मीनिंग क्या है वो समझते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि ए के रिस्पेक्ट में अगर आप ए पे बैठ जाओ, ठीक है, दिस इज ए पे बैठ जाओ, तो बी किधर है? बी कितना दूर है? एक सेकंड, ए के रिस्पेक्ट में बी किधर है? देखो बी इज हियर, कितना दूरी पे? एट एक्स इज इक्वल टू 3 मीटर्स। मतलब यहां से यहां पे कितना दूर है? 3 मीटर्स। कितने स्पीड से जा रहा है? 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, एंड उसका एक्सेलरेशन क्या है? -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है। देख सकते हो एक्सेलरेशन कितना है? -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो उसका मतलब डायरेक्शन क्या हुआ? लाइक दिस, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड इन दिस डायरेक्शन। ओके, दिस इज B and that is A. All right, so I hope you have understood what these individual
terms mean. Okay, now here you can see that since velocity is opposite to acceleration, the particle will slow down and stop at some time. ठीक है, particle B will slow down and stop at some time with respect to A. Very important, with respect to A, not with respect to ground. Ground के respect में it is still moving. देखो इसका velocity और acceleration parallel है, it would still be moving, but A के respect में ये एक momentarily rest पे आएगा. ठीक है, तो दूसरा, and it will start moving in negative direction and collide with A. समझ गए? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है. तो लेट्स कैलकुलेट, ये दोनों इवेंट्स देखते हैं, कब वो रुकेगा एंड कब वो कोलाइड करेगा. ठीक है, नाउ एंड उसका मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसका इंप्लीकेशन समझा देता हूं. ठीक है, तो यहां से देखो, एंड कोलाइड विथ A, राइट. तो लेट्स से कि व्हेन डज इट स्टॉप. लेट्स से एट t इज इक्वल टू t1, t इज इक्वल टू t1 पे B stops. B stops मतलब क्या होगा? Velocity of B with respect to A क्या हो जाना चाहिए? 0. All right. Now, what is the velocity? Initial velocity क्या है? At t is equal to 0, its velocity is 1 meter per second. All right. So we can use V is equal to U plus AT, and in this case it is going to be relative velocity of B with respect to A. एक minute, I'll write it clearly. Velocity of B with respect to A is equal to velocity of B with respect to A initially plus acceleration of B with respect to A times time. Okay, so don't get confused, ये इधर मत सब्स्टिट्यूट करना. ये वाला जो है, दिस वन, ये UBA है, समझ गया ना? दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस वन इज UBA, इनिशियल वेलोसिटी है. ठीक है, नाउ तो इसका वैल्यू 0 पुट कर दो. VBA का वैल्यू क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A क्या? -3 इंटू T. तो इसका वैल्यू क्या? हाँ, T का वैल्यू क्या आ जाएगा? T1 है ना. T का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? T1. इम्प्लाइज T1 का वैल्यू कितना है? 1/3 सेकेंड्स. T1 का वैल्यू क्या आ गया? 1/3 सेकेंड्स. ठीक है, विल नोट दिस वैल्यू, इसको बाद में अपने यूज करेंगे. नाउ द नेक्स्ट इवेंट इज दैट व्हेन डज द पार्टिकल कोलाइड विथ A. तो जब पार्टिकल A के साथ कोलाइड करेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू A B का पोजीशन 0 हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स राइट दैट. When B collides with A, the position of B with respect to A would become what? 0. मतलब उधर ही आके टकरा है ना, इधर ही हो गया. मतलब A के रिस्पेक्ट में A जहां है वहीं पे आ गया वो. मतलब उसका डिस्टेंस A और B के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स से दिस इज एट
t इज इक्वल टू t2 टाइम ले लेते हैं. ओके, नाउ उसके लिए वी कैन यूज दी सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, विच इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इधर मैं f लिख देता हूं ऊपर, माइनस इनिशियल पोजीशन i लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू u b a t प्लस हाफ इंटू ए बी ए इंटू टी स्क्वायर. ठीक है, ये बस समझाने के लिए मैंने बी ए नीचे लिखा है, तो सुपरस्क्रिप्ट में लिख दिया मैंने इसको. एफ एफ मतलब फाइनल हो गया, और फाइनल पोजीशन ये इनिशियल पोजीशन. आई राइट दिस, दिस इज द फाइनल पोजीशन, और ये क्या है? इनिशियल पोजीशन. ओके, तो फाइनल पोजीशन बी ए के रिस्पेक्ट में बी किधर आना चाहिए? टकराने का मतलब क्या हो गया? इधर ही आके लग गया ना. मतलब फाइनल पोजीशन क्या है? 0 0 माइनस एक्स बी ए. एक्स बी ए, एक्स बी ए क्या इनिशियली कितना दूरी पे है? 3 मीटर्स पे. 3 इज इक्वल टू यू बी ए कितना है? यू बी ए इज 1 इंटू टी का वैल्यू क्या लिखेंगे? t2 प्लस हाफ इंटू ए बी ए क्या रहेगा? ए बी ए इज -3 इंटू टी स्क्वायर. टी स्क्वायर मतलब t2 स्क्वायर. ठीक है, तो इसको देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है. लेट्स सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द होल थिंग विथ 2, तो ये हाफ जाएगा. एंड उसके बाद ये सारे नेगेटिव टर्म्स को एक तरफ ले रहा हूँ, इसको भी इस तरफ ले रहा हूँ. तो व्हाट आई विल गेट इज 3t स्क्वायर्ड, 3t2 स्क्वायर्ड माइनस 2t2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, -6 इज इक्वल टू 0. सो ऑल आई नीड टू डू इज कैलकुलेट दिस वन. ये जो कैलकुलेशन है, मुझे सिर्फ ये कैलकुलेशन करना है. एंड इफ यू रिमेंबर, यू नो दी सॉल्यूशन टू दिस वन. तो t2 का वैल्यू क्या रहेगा? माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 3 इंटू -6 बाई 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स 3. ऑलराइट, तो इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो देखो क्या आ रहा है. आई गेट t2 इज इक्वल टू ये -2, ये कितना हो गया? दिस इज गोइंग टू बी 2 प्लस और माइनस ये, दिस इज 4 माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस. और व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज 24 इंटू या 12 इंटू 6 कह सकते हैं ना. सो 12 इंटू 6 इज 72. दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 72. 72 प्लस 4 इज गोइंग टू बी रूट 76. ये हो गया रूट 76 बाई ये कितना हो गया? 6. नाउ हियर्स द थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना. यू कैन सी दैट यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे, या तो प्लस या तो माइनस. तो माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि देखो रूट 76 इज लार्जर देन 2, तो t2 नेगेटिव होना चाहिए. तो t2 देयरफॉर टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, t2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको मैं अभी देखो, मैं इसको 2 से डिवाइड भी कर दे रहा हूँ. पहले बोल देता हूँ कि 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ. तो what will I get? I'll get 1 plus root 19 by 3. 1 plus root 19 by 3. देखो 76 में 4 into 76, सॉरी 4 into 19 is 76. 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, और 2 कॉमन निकालोगे यहाँ पे 3 आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज योर t2 का वैल्यू. इतने सेकेंड्स पे वो आके कोलाइड करेगा. ठीक है, if we calculate this, we'll get, we can say that t2
is approximately is equal to 1.8 seconds approximately. ठीक है, so you can say the particles will collide at at 1.8 seconds. Yeah, after ठीक है, at t2 is equal to 1.8 seconds. ओके, नाउ इसका मीनिंग क्या है समझना. t1 का मीनिंग क्या है? एट t1, जब t1 का कैलकुलेट करोगे, at t1 what is the velocity of A and velocity of B with respect to ground? Let's just check that. ठीक है, so with respect to ground, अभी जो भी कैलकुलेशन हमने किया विद रिस्पेक्ट टू ए किया, अभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं. तो व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड यू विल सी बोथ ऑफ देम मूविंग. तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हाट आर द वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी एट t1 इज इक्वल टू 1/3 सेकंड्स. तो इसका मीनिंग क्या है समझना. v इज इक्वल टू u प्लस at लगा देते हैं. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, तो a के लिए v इज इक्वल टू u कितना है, a का u कितना देखो 2 और a कितना है 4. तो 2 प्लस 4 इंटू 1/3, ये कितना हो गया 4/3 प्लस 2 कितना हो गया 10/3 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए. ओके, व्हाट अबाउट बी? वेलोसिटी ऑफ बी, दिस इज एट when are we calculating this? At t is equal to 1/3 seconds. ठीक है, तो 1/3 seconds पे वेलोसिटी ऑफ बी देखो कितना रहेगा. वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? इट इज 3 एंड उसका एक्सेलरेशन कितना है 1. तो यू कैन राइट 3 प्लस 1 इंटू 1/3. ये देखो, यू कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो 10/3 मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट डज दैट मीन? व्हेन यू से कि रिलेटिव वेलोसिटी इज 0, कैन यू सी दैट रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया, दैट मीन्स बोथ आर हैविंग द सेम वेलोसिटी. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट अर्लियर, पिछले क्लास में वो किया था. जब दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाता है. तो हियर यू कैन क्लियरली सी दैट you can write this statement in fact कि when relative velocity is 0 then both the particles are moving with same velocity. सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ना, कितना स्पीड से 10/3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, इसलिए एक के रिस्पेक्ट में दूसरा क्या हो गया, मोमेंटरली रेस्ट पे हो गया. ठीक है, नाउ इस चीज को समझने का कोशिश करो. जस्ट ट्राई टू हैव अ फील फॉर दिस कि दिस पर्टिकुलर पार्टिकल ए जो है, ए का स्पीड देखो पहले कम था बी के कंपैरिजन में. जस्ट लुक एट ए एंड बी. ए इज स्लोअर देन बी इनिशियली, बट ए का एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन बी. कैन यू सी दैट? ए पहले पक्का देख सकते हो कि ए तो स्लो था, बी के कंपैरिजन में स्लो था. बी वाज फास्टर, मतलब उनके बीच का दूरी बढ़ रहा था. बट नाउ बोथ ऑफ देम आर गेनिंग स्पीड. बी भी फास्ट होते जा रहा है, ए भी फास्ट होते जा रहा है, बट जल्दी कौन फास्ट हो रहा है? ए फास्ट जल्दी हो रहा है. तो ज्यादा जल्दी कौन स्पीड गेन करेगा? ए जल्दी स्पीड गेन करेगा. सो इवेंचुअली A and B would have a same velocity, and after some time A would have more velocity than B, and A would क्या बोलते हैं जाके B से टकरा जाएगा. ठीक है, you should get a feel for that. Okay, now तो ये हो गया t is equal to 1/3 seconds का, and at t2 is equal to 1 plus root 19/3 seconds. उसका क्या मीनिंग है? इस चीज का क्या मीनिंग है वो ये है कि एट दैट टाइम दोनों का पोजीशन क्या रहेगा? सेम. बोथ द पार्टिकल्स वुड बी एट द सेम पॉइंट. आई विल राइट दैट आल्सो. एट
T2, I'm not going to calculate that. You can check that. As x is equal to ut plus half at square for both the particles. You can check that. You will get that both the particles are at the same point. Okay. So at t is equal to 1.8 seconds, both the particles are at the same point. ठीक है, मतलब ये जो मूव किया और ये जो मूव किया एक ही पॉइंट पे आ गए, समझ गए ना? तो वो चीज हो रहा है एट टी इज इक्वल टू 1.8 सेकेंड. दैट इज वाई इसका एक्स रिलेटिव क्या, एक्स बी ए इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंप्लीट एनालिसिस ऑफ रिलेटिव मोशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ओके, सो ऐसा है कि दिस इज द ग्राउंड. Let's do a problem. This is the ground. And there are two people. Let's say कि this is the police. ठीक है, ये पुलिस है. And this is a thief. Okay, police and thief. All right, now police is moving with a constant velocity of 5 meters per second. Police is moving with a constant velocity of 5 meters per second. Okay, and thief starts at rest. Thief starts at rest. U इसका क्या है, 0, but it has a constant acceleration. It has a constant acceleration of, let's say, 1 meter per second square. ठीक है, 1 meter per second square. Can you see that कि दोनों, देखो ये तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है. This is moving with, the police is moving with constant speed या constant velocity बोल देता हूं, and this guy is moving with a constant acceleration. Okay, now तुम्हें ये पूछा है कि you can clearly see that इसका स्पीड कांस्टेंट है, इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है. ठीक है, तो my first question is, इसमें you are supposed to calculate a couple of things. The first thing is, when will the thief be at rest with respect to the policeman, to be specific, policeman. ठीक है, with respect to the policeman. Okay, that's the first question. दूसरा, what should be, या what can be the maximum separation between them so that the policeman catches the thief. ध्यान रहे, a similar question was asked in JEE Main, I think 2017 में. Similar question using the same concept. ठीक है, चलो give it a try. All right, so the first problem is
कि when will the thief be at rest with respect to the policeman. तो फर्स्ट में कब होगा? when thief has same velocity as policeman. तो इसका मतलब थीफ का v कितना चाहिए? v कितना होना चाहिए? 5 मीटर पर सेकेंड. u कितना है? 0. a कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो t निकाल लो. तो you just use the first equation. v is equal to u plus at implies 5 is equal to 0 plus 1 into t. It implies t का वैल्यू आ गया 5 seconds. That is your answer to the first question. Okay. Now the second question is, what can be the maximum separation between them so that the policeman catches the thief? देखो, if the separation is too large, the thief won't be, the policeman won't be able to catch the thief. ठीक है. And if the separation is small, then the policeman would be able to catch the thief. ठीक है. तो इसका लॉजिक ये है कि the relative separation, या फिर थोड़ा सिंपल वर्ड्स में लिखता हूं, द policeman should reach the thief before, at least before the thief gets faster than the policeman. Simple logic. थीफ का स्पीड बढ़ते जा रहा है, पुलिसमैन का स्पीड फिक्स्ड है. अगर थीफ का स्पीड पुलिसमैन से ज्यादा हो गया तो पुलिस कभी नहीं पकड़ पाएगा. तो पुलिस को कैसे भी थीफ के पास पहुंचना होगा बिफोर द स्पीड ऑफ द थीफ इज मोर देन 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो दैट इंप्लाइज कि विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू थीफ लिखता हूं, लेट्स से विथ रिस्पेक्ट टू थीफ, with respect to thief, what's the situation? The situation is this, ये पुलिस का जो स्पीड रहेगा वो तो कितना है? इट इज गोइंग टू, ये पुलिस हुआ, ये हो गया थीफ. ठीक है. विथ रिस्पेक्ट टू थीफ, थीफ का वेलोसिटी सब 0 ले लोगे. पुलिसमैन का वेलोसिटी क्या रहेगा? इट इज गोइंग टू बी 5. एंड पुलिसमैन का एक्सेलरेशन क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी -1. देख सकते हो लाइक दिस, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उल्टा. I'll just write that velocity of police with respect to thief is going to be velocity of police minus velocity of thief, which is equal to what? 5 minus 0 is 5 meter per second. Acceleration of police with respect to thief क्या होगा? Acceleration of police minus acceleration of thief, मतलब वो कितना हो गया? 0 minus 1, which is -1 meter per second square. ठीक है. Now you can clearly see with respect to thief, the policeman is slowing down. ठीक है. Let's say इनके बीच का जो separation है, let's say the separation between them is S separation ले लेते हैं. ठीक है. इनके बीच का जो separation है उसको S ले लेते हैं. ठीक है. तो देखो अभी क्या लिख सकता हूं. You can say that with respect to thief, the policeman is slowing down. मतलब इसके रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखना, विथ रिस्पेक्ट टू थीफ पुलिसमैन को इसके पास पहुंचना होगा बिफोर उसका वेलोसिटी क्या हो जाए? 0. तो इसका मतलब क्या कर सकता हूं मैं कि व्हेन दी फॉर दी लिमिटिंग कंडीशन, मतलब कि ये वाला कंडीशन देखो, पुलिसमैन शुड रीच द थीफ. व्हेन दी पुलिसमैन रीचेस द थीफ,
you can say that relative separation is 0, and before the thief gets faster, matlab let's say exactly when the thief has kitna speed, 5 meter per second, समझ गए? exactly when the thief has 5 meter per second speed. तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से? I can write that with respect to thief, इसका policeman is slowing down, so his मतलब किसका? So the velocity of policeman should be, या should be नहीं, can be max, या at max can be at least 0 when the relative separation is 0. ठीक है, मतलब ये जैसे जैसे पुलिस इसके पास आएगा तब उसका वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए. ठीक है, तो यहां से देखो वी कैन यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें तो v स्क्वायर्ड इज इक्वल टू u स्क्वायर्ड प्लस 2as. v कितना हो गया? 0. मतलब इधर आते आते कितना हो जाना चाहिए? इधर पहुंचते पहुंचते उसका 0 हो जाना चाहिए. u कितना है? 5 स्क्वायर्ड प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? -1 इंटू s. तो यहां से देखो कितना है s का वैल्यू. दिस इंप्लाइज s का वैल्यू आया 12.5 मीटर्स. 12.5 meters. ठीक है, so you can say that if the separation, या s लिख देता, if s is greater than 12.5, policeman will not catch the thief. ओके, एंड अगर डिस्प्लेसमेंट या फिर इनके बीच का सेपरेशन जो है, इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 12.5 meters, then you can say that policeman will catch the thief. ये तो मैं समझाने के लिए मैंने इतना किया, वरना अपने इसको सीधा वन लाइन पे सीधा, अगर तुम्हें इसका चीज का फील आ गया तो यू कैन क्लियर डायरेक्टली सॉल्व इट. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Okay, now let's look at an example where we can use relative motion in free fall. Okay, now एक पार्टिकल को एक सर्टन हाइट से ड्रॉप किया. ठीक है, लेट्स से दिस इज अ पार्टिकल, इट इज ड्रॉप्ड, एंड लेट्स से दिस इज पार्टिकल ए, एंड दूसरा जो पार्टिकल है, पार्टिकल बी, उसको एक वेलोसिटी लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर फेंका. ठीक है, now let's say the height of this is 20 meters. ठीक है, 20 meters. तो my first question is, या चलो, my question to you is, will they meet? Will these two particles meet? Will A and B meet? And we have to assume that there is no bouncing. ऐसा नहीं कि इधर टकरा के वापस ऊपर गया, ऐसा कुछ. No bouncing. Okay,
या ओके चलो ओके नाउ let's look at the relative velocities here. With respect to a with respect to a velocity of b with respect to a क्या होगा? Velocity of b minus velocity of a, which is 5 minus 0, which is equal to 5 meter per second. Acceleration of b with respect to a is simply 10 minus 10, which is 0 meter per second square. And relative separation कितना है? Displacement of या relative separation ba is simply you can see that it is 20 meters. दोनों के बीच का separation देखो कितना है? 20 meters. So you might see कि यहाँ पे तो time would be what? Acceleration 0. So that is uniform motion, uniform relative motion. That implies कि velocity of b with respect to a क्या होगा? Separation between b and a by time. इधर से टाइम क्या हो गया? सेपरेशन बिटवीन बी एंड ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी बिटवीन बी एंड ए, विच इज इक्वल टू कितना हो गया ये? 20/5, विच इज 4 सेकेंड्स. 4 सेकेंड्स में मीट करेगा करके ऐसा आएगा, बट दिस इज रॉन्ग. ठीक है, दिस इज रॉन्ग. दे विल नॉट मीट बिकॉज यू नीड टू एनालाइज दिस फर्स्ट कि what is the time taken by A to fall onto the ground and what is the time taken by B to fall onto the ground. So let's calculate each one of them. Okay, so here you should first analyze what you should first see time taken A to reach the ground. Time taken by A to reach the ground. A को कितना टाइम लगेगा? You know that time TA, इसका फॉर्मूला क्या होगा? √2h/g is equal to √2 into h कितना है? 20 meters by 10. You can see that it is 2 seconds. Next, time taken by B to reach the ground. TB, ग्राउंड टू ग्राउंड फेंकते हैं ना, वो नीचे से ऊपर फेंकते तो कितना था? 2u/g होता है. 2u/g, तो 2u/g कितना होगा? 2 × 5/10 कितना हो? 1 सेकेंड. सो यहां से क्या सिंपली देख सकते हैं? B will be back on the ground while A is still falling. That implies they will not meet. समझ गए? They will not meet. Let's say similar situation. Similar situation. This is A. A is being dropped, and this is B. B has been projected with a speed of 20 meter per second, and the height of the tower is 20 meters. ठीक है, ये जो पार्टिकल है, it has been dropped. Okay, so the first question is, will they meet?
Second question, when will they meet? And third question, where will they meet? Of course, अगर first correct है तो ही second और third possible है. चलो, do it right now. Okay. तो will they meet के लिए सबसे पहले अपने को time calculate करना पड़ेगा. तो first one के लिए time of flight of A क्या रहेगा? It is going to be under root 2h by g. 2h by g, 2 into 20 by 10, which is 2 seconds. And time of flight of B क्या रहेगा? 2u by g रहेगा. So that is 2 into 20 by 10, which is equal to 4 seconds. So पक्का yes, they will meet. Yes, they will meet. Because B takes more time to come down. तो बीच में कहीं वो लोग मिलेंगे. ठीक है. Next question is कि when will they meet? So when will they meet? You can see that V relative क्या हो गया? Velocity of B with respect to A कितना है? 20 minus 0 is equal to 20 meter per second. Acceleration of B with respect to A कितना है? It is 10 minus 10, which is 0 meter per second squared. And separation between B and A क्या है? It is 20 meters. That implies you can say that कितने टाइम पे मिलेंगे वो लोग? They'll meet at displacement SBA by VBA पे मिलेंगे. कितना टाइम होगा? 20 by 20 in 1 second. They'll meet at 1 second. Okay, they'll meet at 1 second. And where will they meet के लिए you can see कि displacement of A in 1 second क्या होगा? Displacement of A in 1 second कितना होगा? हाफ GT स्क्वायर है ना? हाफ GT स्क्वायर होता है, मतलब हाफ into 10 into 1 squared is equal to 5 meters. So they will meet where? They will meet at 5 meters from top or at a height of 15 meters. Okay, so that is the answer.